I welcome you all to Major HS Kalsi's Balno Academy. I am Dimple Kaushik, Faculty of English. Today we are going to discuss CDS 1 2025 question paper of English. I hope you will learn so many new things from my side. So this is set 1 of CDS 1 2025. This is question number 1. There are so many fixed questions asked by UPSC examiners, and in this question what we are going to learn, they are asking you some questions based on synonyms, antonyms, parajumbled, common errors, questions based on parts of speech. And this time what special they have asked you, they have asked you some questions related to S1, S2, S6, S1, S2, S3. This is the new pattern of the questions they have asked, because in these questions generally they are the questions of logical reasoning, but first time they have asked you such questions in English question paper. So we are going to discuss question number 1. And what is the topic of the question? We have to make an improvement in any question. This is the question based on sentence improvement. There is a word that is underlined in the question. You must try to understand the meaning of the word, and according to that meaning you must try to improve the statement. Okay, so we should check whether the sentence is appropriately used in the given question or not. The officer under suspension felt intimidated by the committee members during his interrogation regarding the allegations against him. Try to understand first what the examiner wants from your side. They want from the students of UPSC especially, they must have good collection of vocabulary, because in this paper especially what I personally feel that they have framed the whole paper based on vocabulary. What you noticed in this paper, first time they are not asking you questions based on RC. देखा आपने, आरसी को गायब कर दिया है सीडीएस के क्वेश्चन पेपर से। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए हैं, आपसे होमोफोन्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, आपसे क्वेश्चंस डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, आपसे फॉरेन वोकेबलरी के वर्ड्स नहीं पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो यूपीएससी ने सीडीएस एग्जाम में इस बार चेंज किए हैं, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से बता रही थी कि 2016 का आप पेपर चेक कर लेना। 2016 का पेपर एनडीए और सीडीएस अचानक से सडन चेंज हुआ था, बहुत पैटर्न चेंज हुआ था। देन 19, देन 22, and I was expecting that in 2025 they will do some wonders, and what they have done, that is a wonder for the students, है ना। So without having good vocabulary you are not even able to qualify English section. So for the next exams you must have good knowledge of vocabulary. Now the officer under suspension felt intimidated by the committee. What is intimation? बोलते हैं ना, ओ एटलीस्ट यू मस्ट इंटीमेटेड मी, तुम कम से कम मुझे जानकारी तो देते, मुझे कुछ सूचित तो करते, है ना, मुझे सूचना तो देते। बाय द कमेटी मेंबर्स ड्यूरिंग हिज इंटरोगेशन रिगार्डिंग द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। किसी के ऊपर कुछ विरोध, मतलब एलिगेशंस लगे हैं, क्या बोलेंगे, आरोप लगे हैं, उन आरोपों के लिए वो कह रहा है कि आप मुझे इंटीमेट तो करते। ठीक है, सो द राइट आंसर इज इंटीमिडेटेड। यहाँ पर हमने, उन्होंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है, दे हैव यूज द रॉन्ग वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब बेस्ड क्वेश्चंस हैं, रॉन्ग पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसे हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो इंटीमेटेड की जगह पे इंटीमिडेटेड हमें लिखना होगा। इसका मतलब होता है सस्पेंशन फेल्स इंटीमिडेटेड बाय द कमेटी मेंबर्स, की
जो उसका सस्पेंशंस था वो उनके संस्कारों के ऊपर बेस्ड नहीं था, कि संस्कार कोई काम नहीं करते। जब आप किसी को सस्पेंड करते हो तो वहां आप ये नहीं देखते कि आपके संस्कार क्या कहते हैं। अगर किसी के ऊपर एलिगेशन है देन ही मस्ट बी सस्पेंडेड, उसको सस्पेंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, amongst them all she was the only one with the, amongst them उन सब में से कोई एक, she was the only one with the perquisite to understand the complexity of the situation, ठीक है। वो कह रहा है कि सिर्फ वो एक अकेली थी जिसने इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन को समझने की कोशिश की, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परक्विसाइट? परक्विसाइट मीन्स होता है स्पेशल बेनिफिट्स, ठीक है। क्या स्पेशल बेनिफिट्स उसको मिले हुए थे जो उसने कोशिश की टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन? सो द राइट आंसर इज पर्निशियस होता है हार्मफुल, बोलते हैं ना पर्निशियस इफेक्ट्स, हार्मफुल। सो द राइट आंसर इज परपिकेसिटी। एट द क्वेश्चन नंबर 3, at the official function organized for the attending dignitaries, कुछ हाई ऑफिशियल्स हैं जो इस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं। गेस्ट अराइव्ड इन स्क्रम्पशियस अटायर फॉर द बैंकेट। अटायर मतलब क्या होता है? वेशभूषा, पहनावा, है ना। कि वो कह रहा है कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे डिग्निटरीज आए थे, हाई ऑफिशियल्स को बोलते हैं डिग्निटरीज। कुछ हाई ऑफिशियल्स आए थे, हाई क्लास के लोग थे जिन्होंने बहुत सुंदर, बहुत तरीके से अपने आप को ड्रेस्ड किया हुआ था, है ना। गेस्ट अराइव्ड इन स्क्रम्पटियस, स्क्रम्पटियस की जगह पे क्या होगा? समटियस वर्ड यूज करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से, है ना। क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब होता है टेस्टी। अब ड्रेस कभी टेस्टी नहीं हो सकती, कि उन्होंने खुद को टेस्टी ड्रेस्ड किया हुआ था। उन्होंने बहुत वेल बिहेव्ड तरीके से खुद को ड्रेस्ड करके वो लोग पहुंचे थे। द लेक अटॉप एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, द लेक एट द टॉप ऑफ द माउंटेन हैज ऑलवेज बीन द लायर। लायर मतलब ल्यूर, अट्रैक्ट करना, है ना। वो कह रहा है कि जो लेक है एट द टॉप ऑफ द माउंटेन हैज ऑलवेज बीन द लायर फॉर द इंट्रेपिड हाइकर्स, कि वो जो लेक है वो हमेशा से जो लोग हैं बाहर के उनको अट्रैक्ट करती है, उनको एक अट्रैक्शन आता है उसको देख के। तो ल्यूर मीन्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 5, the candidates went through an intensive instructions process before their absorption into the service। वो कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक अच्छी खासी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है बताने के लिए। द कैंडिडेट्स वेंट थ्रू एन इंटेंसिव इंस्ट्रक्शन प्रोसेस बिफोर देयर एब्जॉर्प्शन इनटू द सर्विस। कभी भी किसी भी व्यक्ति को हम ऐसे सर्विस में नहीं लेते कि आइए जी नमस्ते, आप ही का स्वागत है, आप ही की वेट थी। उसके लिए एक बहुत सारी प्रोसेस से उसको होकर गुजरना होता है। लाइक यू की पहले आप एग्जाम देते हैं, फिर एसएसबी होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, देन यू विल बी फिट टू द सर्विस, है ना। तो वो कह रहा है कि जो कैंडिडेट था उसको एक बहुत इंटेंसिव, इंटेंसिव मतलब वास्ट, है ना, एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है, गोइंग थ्रू अब्सॉर्प्शन इनटू द सर्विस, है ना। तो यहाँ पर जो वर्ड है क्या वो एप्रोप्रिएट यूज है उस वर्ड का, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं होगा, इंटीमेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि उसको बहुत सारी जानकारी से होकर गुजरना पड़ता है, जानकारी से नहीं, इंटीमेशन। इंटीमेशन मतलब उसको पहले से उसके बारे में इंटीमेट कर दिया जाता है, सूचित कर दिया जाता है कि अब तुम्हारा एसएसबी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑफिसर ऑफिस मेमोरेंडम डायरेक्टली पर्सनल, पर्सनल कौन होते हैं? ऑफिसर्स, है ना, जो अधिकारी होते हैं। द ऑफिस मेमोरेंडम डायरेक्टेड पर्सनल टू मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब रिड्यूस, ये तो डायरेक्ट वर्ड है, टू मिनिमाइज देयर कंजप्शन। मिनिमाइज की जगह पे हमने रिड्यूस वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि मिनिमाइज का मतलब होता है जनरली किसी चीज की मात्रा को कम करना। यहाँ पर हम
मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं। द ऑफिसर मेमोरेंडम डायरेक्टेड पर्सनल ऑफिसर्स को कहा गया है कि आप अपनी कंजप्शन को रिड्यूस करिए, ठीक है, कि अपनी ये जो आप स्टेशनरी यूज करते हैं ये आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें। मिनिमाइज मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी समझ रहे हो, मतलब लाइक केजी, ग्राम, मिलीग्राम, है ना, ये सारा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, टू रिड्यूस देयर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The announcement of an unexpected bonus led to great tumult among the staff. अब अचानक से आपने देखा कभी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अगर उनकी अचानक से टीए डीए बढ़ जाता है तो क्या होता है, उस दिन कोई काम नहीं करता, सब इस खुशी में हंगामा मचाते हैं, खुश होते हैं। अप्रॉर मतलब हंगामा, है ना, सब क्या करते हैं उस दिन, हंगामा करते हैं इस बात के लिए कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर हंगामा का वर्ड मतलब ये नहीं है, नेगेटिव सेंस नहीं है, हंगामा मतलब नेगेटिव वर्ड नहीं है। हंगामा मचाते हैं मतलब खुश होते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, ठीक है, जब उनका कोई बोनस बढ़ जाता है। उसके बाद the scurrilous remark in the article were met with great joy by the leadership of the country, है ना। कोई रिमार्क किसी को जब हम देते हैं, क्या वो रिमार्क जो है वो अपब्रेडिंग हो सकता है, ठीक है। अपब्रेडिंग क्या होता है, अपब्रेडिंग मीन्स कि किसी चीज का जो रिमार्क है वो अपग्रेडिंग नहीं हो सकता, किसी को तिरस्कार नहीं कर सकते। लॉडेटरी, लॉडेटरी मतलब होता है प्रेज वर्दी, है ना, लॉडेटरी मीन्स प्रेज वर्दी। तो जब कोई रिमार्क हम किसी को देते हैं तो वो प्रेज वर्दी है, क्यों, वर मेट विद ग्रेट जॉय, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, सो द आंसर मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. हिज inappropriate behavior earned plaudits from his colleague. जो इसका inappropriate behavior है किसी व्यक्ति का, उस कारण उस पर्सन को बहुत ज्यादा जो है ट्रिम्फ नहीं होगा, ट्रिम्फ का मतलब होता है जीतना, ऑपोरोबियम मतलब होता है कि बहुत ज्यादा उसको सम्मानित तरीके से उसका व्यवहार नहीं किया जा रहा उसके साथ। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर अर्न प्लॉडिट्स फ्रॉम हिज कलीग मतलब वहां पर उसको बहुत सारी क्रिटिसिज्म, उसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है, क्यों, क्योंकि उसके कलीग्स का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा नहीं है। द एनॉर्मिटी, एनॉर्मस वर्ड से बना है ये, एनॉर्मस मतलब होता है अत्यधिक, है ना, एनॉर्मस मीन्स अत्यधिक, more than required, more than required. Okay, चलिए, now there are some questions based on common error, there are some questions based on common error. common error में देखते हैं हम लोग क्या करना है कि आपको कुछ statements दी हुई हैं which are not used as per their डिमांड, ठीक है। कॉमन एरर में एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी इफ एनी हाउ यू विल सी कि देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द प्रेपोजिशन, मैंने हमेशा क्लास में बताया है कि फिक्स प्रेपोजिशन आपको याद करके जानी है। फिक्स प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन ना आए किसी भी एग्जाम में, ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यू मस्ट लर्न ऑल द फिक्स प्रेपोजिशन, मीन्स टू से फ्रेजल वर्ब्स, दे विल डेफिनेटली आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब। तो बहुत सारे मैंने देखा कॉमन एरर में जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेजल वर्ब के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि अभी पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्यूजेशन ऑफ, एक्यूजेशन मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, है ना। तो वो कह रहा था accusation of abatement to the crime that had been leveled at him was eventually not proven in the court. जो ब्लेम उस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया, ठीक है, द एक्यूजेशन ऑफ अबेटमेंट टू नहीं होगा, अबेटमेंट ऑफ होता है। फिक्स प्रेपोजिशन अबेटमेंट टू नहीं होता, अबेटमेंट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ होती है। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में ही एरर दिखाई दे गया, दैट हैड बीन लेवल्ड एट हिम वॉज इवेंचुअली, यहाँ पे वॉज का एरर हम चेक करेंगे कि ये सही है या गलत। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल बी सिंगुलर, सो देयर इज नो एरर रिलेटेड टू दिस पार्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12,
The unintentional mistakes, the unintentional mistakes. If the subject is plural, verb will be plural. Was की जगह पे क्या हो जाएगा? Were, है ना? If the subject is plural, verb will be plural. The unintentional mistakes made by the clerical staff were overlooked by the officers. Was नहीं, was की जगह पे क्या आ जाएगा? Were. The opening batsman was famous. कोई opening batsman है जो सबसे पहले उसको bowling and batting मिली है ना, batting मिली है. तो the opening batsman was famous for the imperial strokes. Imperial strokes क्या होते हैं? Effective strokes, है ना? Imperial strokes मतलब effective strokes, अच्छे रन ले रहा है वो. He played on the cricket field. ठीक है, he played on the cricket field. वो जब खेल रहा है तो बहुत अच्छे स्ट्रोक्स ले रहा है. द ओपनिंग बैट्समैन वॉज फेमस, यहाँ वॉज है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है. फॉर द इंपीरियल स्टॉक, इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है. कॉमन एरर सॉल्व करते समय हमेशा आपको ये देखना है कि जो कॉमन एरर मैं सॉल्व कर रहा हूँ वहां पर मुझे उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है. फर्स्ट ऑप्शन में कोई एरर नहीं, देन मूव टू द सेकंड, देन मूव टू द थर्ड एंड देन डी. ठीक है, और अगर सब में नहीं है तो नो एरर. तो आप लोग क्या गलती करते हो, कॉमन एरर सॉल्व करते समय पूरी लाइन पढ़ लेते हो. वी फील लाइक दैट कि हम पूरा ना एक लाइन को पढ़ रहे हैं, तो पूरी लाइन को नहीं पढ़ना. आपने क्या देखना है वहां पर कि उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है. ए पार्ट में एरर ढूंढना है, नहीं है तो बी पार्ट में, बी पार्ट में नहीं है तो सी पार्ट में. ही प्लेड ऑन द क्रिकेट फील्ड, सो द राइट आंसर इज नो एरर. क्वेश्चन नंबर 14. ईच स्टूडेंट वाज मींट टू रिसीव एन इक्वल share of the scholarship, but the eventual distribution was found to be inquisitive. Each student was, each, every, either, neither, somebody, nobody, someone, no one, anyone के साथ verb हमेशा singular आती है, यानी कि singular लिखा हुआ है. noun singular होता है, verb singular होती है. no error in part A. an equal share, अगर मैं यहाँ पर the equal share लिख देती तो common error हो सकता था, लेकिन B पार्ट में भी हमारे पास कोई error नहीं है. was found to be, अब यहाँ पर अगर सब कुछ singular है तो आगे भी was आ जाएगा. was found to be inquisitive, है ना? was found to be inquisitive. inquisitive मतलब होता है unfair. वो कह रहा है कि एक unequal डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा अनफेयर था, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो क्वेश्चन नंबर 15. नो वन टर्न अप टू क्लेम द स्टॉप्ड अवे पीस ऑफ बैगेज. पीस ऑफ बैगेज, इन्होंने बैगेज से पहले पीस ऑफ लगाकर उसको काउंटेबल बना दिया. We should use piece of, type of, kind of before the words like luggage, baggage, advice, information, poetry, scenery, jewelry. We can use so many words before these words to make them countable. So यहाँ no one turned up to claim the stored away piece of baggage which was discovered on the luggage compartment of the bus. On the luggage compartment of the bus, yeah, in the luggage compartment of the bus. है ना? So many questions they have asked you from the chapter preposition. You must be ready for this. Preposition based question will be asked in so many examination. This is true and you must prepare well. Certain animals have a tendency to communicate only with its own species. Animals are plural, so we will use the plural pronoun there. Animals is a plural, so we will use plural pronoun there. Okay, question number 17. As soon as the clock chimed to announce the hour at midnight, she sprung up from her bed. As soon as the clock, वो कह रहा है जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, 4 बजाए, 5 बज गए, जैसे ही as soon as the clock chimed to announce the hour at midnight, जैसे ही रात को घड़ी ने 12 बजाए, एकदम से लोग क्या हुए? स्प्रंग अप. स्प्रंग अप नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? V2 है, तो आगे भी V2 होनी चाहिए, स्प्रिंग अप हो जाएगा. क्या हो जाएगा? स्प्रंग अप की जगह पे
स्प्रिंग अप लिखेंगे। देयर आर पीपल हु आर लाइकली, देयर आर पीपल हु आर लाइकली, कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब 100% आप लोग चेक कर लेना कॉमन एरर के लिए। अगर हु लिखा है तो उसके पहले वाला वर्ड वर्ब को डिसाइड करता है। इट इज आई हु इज टीचिंग यू नहीं, इट इज आई हु एम टीचिंग यू, इट इज शी हु इज हेल्पिंग यू, they are the people who are telling you. So we should always use verb according to the relative pronoun. Verb must be according to the word used before relative pronoun. तो relative pronoun से पहले वाला अक्षर अगर plural है तो verb भी plural होगी। To fraternize, to fraternize, fraternity मतलब होता है brotherhood, भाईचारा, with their own community yet none other. Fraternity मतलब brotherhood, भाईचारा, with their own community yet none. yet का क्या यूज होता है आप लोगों को पता होगा ग्रामर में। yet कब यूज करते हैं? when there is a positive and negative statement, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव। जिससे मैं बोलूंगी कि he tried yet he failed, he tried yet he failed, उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया। तो इसमें क्या है कि yet हमेशा एक आउटकम को बताता है, पॉजिटिव एंड द रिजल्ट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ येट तो नहीं आएगा पक्का है, लेकिन इसकी जगह पे हम बट लिख सकते थे। ठीक है, येट नहीं होगा लेकिन इसकी जगह पे हम बट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, द माइम शो। माइम शो क्या होता है? बचपन में आप लोगों ने मिमिक्री शो देखा होगा, है ना। बचपन में लोग बच्चे क्या है स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, टीचर्स की मिमिक्री करते हैं, जैसे टीचर बोलता है उसको ऐसा ही बोल के सुनाते हैं। तो वो कह रहा है द माइम शो अट्रैक्टेड अ ह्यूज ऑडियंस, कि एक मिमिक्री शो था जिससे बहुत सारे ऑडियंस वहां पे आए। डिस्पाइट द हाई प्राइसेस ऑफ टिकट, बहुत महंगी टिकट थी फिर भी ऑडियंस वहां पहुंच गए। विच डिफाइड द पर्पस ऑफ द पब्लिक इवेंट, जिससे जो पब्लिक इवेंट था उसका पर्पस ही क्या हुआ, खराब हो गया। ठीक है, द माइम शो अट्रैक्टेड अ ह्यूज ऑडियंस डिस्पाइट द हाई प्राइसेस ऑफ टिकट्स which defied the purpose of the, which defies the purpose of the public event, जिससे जो पर्पस था, या had defied लिख सकते थे यहाँ पे, because if the V2 is given the next part must be in had plus V3। अगर पहले वाले पार्ट में V2 होता है तो नेक्स्ट पार्ट में had प्लस V3 हो सकता है, या पहले वाले पार्ट में had प्लस V3 है तो नेक्स्ट पार्ट में कंडीशनल चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन व्हेन आई रीच्ड देयर। सो दीज आर कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, 1 or 2 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू रिलेटेड टू द चैप्टर कंडीशनल। He was unable to recall where he had hanged his shirt after returning home from this। देख रहे हो यहाँ पर पास्ट टेंस है तो आगे भी हमेशा पास्ट टेंस ही होता है, ये तो वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्वेश्चन नंबर 20, he was unable to recall where he had hanged नहीं होगा। hang की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? hang, बोलिए जल्दी से। hang मतलब किसी चीज को लटकाना, टांगना, है ना। hang, hung, hung। so the right answer is where he hung his shirt after returning home from ऑफिस, उसने वहां पर आकर अपनी शर्ट टांग दी। ठीक है, अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें हम लोग देखते हैं क्या करना है। देयर इज नो ट्रुथ इन डैश क्लेम्स इवन दो दे हैव बीन क्लेवरली स्टेटेड। वो कह रहा है देयर इज नो ट्रुथ इन दीज क्लेम्स। कुछ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे हुए, मतलब उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। There is no truth in these claims even though they have been cleverly stated. The bridge was intended to allow people to cross, cross के साथ across, down तो आएगा नहीं, so the right answer is over, to cross over। next question number 23, I shall not rest, मैं तब तक रेस्ट नहीं करूंगा after, देखते हैं इसमें क्या आता है। I shall not rest until, until time के लिए होता है dear students, so we will use until। There are several reasons behind my choice of location for the family visit। मैं अपने family visit के लिए, देखो ये तो कुछ questions आपके एग्जाम में मुझे
बहुत इजी लगे इस बार फर्स्ट टाइम, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है, या आपसे उन्होंने ना इस बार पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पूछा है, वरना आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आ रहे थे। नाउ दे हैव चेंज द पैटर्न, पूछा तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकिन पैटर्न चेंज कर दिया। अब इसको मैच द फॉलोइंग में दे दिया। पहले वो आपको एक वर्ड दे देते थे, मान लो मैंने कह दिया कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग ढूंढते थे कि जीरेंड हो जाएगा। मैं कहती थी टू एर इज ह्यूमन, तो टू एर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम कहते थे इनफाइनिट है, 2+V1 आ रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने ना सेम क्वेश्चन क्या करा, मैच द फॉलोइंग में दे दिया कि बच्चों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये पहचानना आएगा या फिर नहीं आएगा। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स में इस बार उन्होंने प्रपोजिशन बेस्ड, दे हैव गिवन यू सो मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रपोजिशन। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं फटाफट से इसको कंप्लीट कर रही हूँ। ऑल ह्यूमन बींग्स ought to have a moral center to fall back on। to fall back on मतलब होता है वापस से वहीं आना, जिस परिस्थिति में आप थे उस परिस्थिति में ही आप वापस पहुंच गए हैं। ठीक है, सो दे आर द क्वेश्चंस, इनको हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स। अगर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए आपको पता है जो अप्रैल का पेपर होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द मिरर इमेज फॉर योर सितंबर एग्जाम, है ना। कि आपका जो अप्रैल का पेपर, कभी भी कोई भी पेपर आप उठाकर देख लेना, जो अप्रैल में पेपर हुआ होगा सेम उसी पैटर्न पे सितंबर में एग्जाम होता है। अब आपका ये जो पैटर्न आया है लेटेस्ट, इट मींस इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड वो लोग क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं आपके सितंबर में। तो अगर आप जो बच्चे खुद से भी घर पे तैयारी करते हैं वो चेक कर लेना, इस चैप्टर का नाम होता है होमोफोन्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इस चैप्टर का क्या नाम होता है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज होमोफोन्स बोलते हैं। सिमिलर साउंड, फोन मतलब साउंड, होमो मतलब सिमिलर, तो सिमिलर साउंड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, कि बोलने में इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है, पेयर, पियर, पेयर, है ना, तो सेम प्रोनाउंसिएशन है बट डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पर पियर, पियर एक फ्रूट है, नाशपाती बोलते हैं इसको, है ना। पेयर मतलब किसी चीज का जोड़ा। ठीक है, अगर दो वर्ड का भी, वैसे पिछली एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें दो वर्ड आते थे, जैसे अकॉर्ड, अकॉर्ड, इफेक्ट, इफेक्ट, हाइड, कंसील, एडवाइस, सजेशन। और अभी सुबह मैं मॉर्निंग में एनडीए का भी पेपर डिस्कस कर रही थी, उसमें भी आए हुए थे, जैसे आपसे पूछा हुआ था एडवाइस, सजेशन, और था उसमें इफेक्ट, इफेक्ट, और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तो अभी तक दो वर्ड होते थे, फर्स्ट टाइम 3 वर्ड उन्होंने पूछे हैं होमोफोन्स में ही। तो किन्हीं भी 2 वर्ड का अगर हमें मीनिंग पता होगा ना तो काम चल जाएगा। अगर कोई भी 2 वर्ड का भी मीनिंग पता होगा तो ऑप्शंस पे चले जाएंगे डायरेक्ट हम। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि क्या कहता है। पियर ट्री, पियर ट्री मतलब पेड़ है जिसपे फल लगे हुए, हाँ जी सही है, पियर ट्री मतलब पेड़ होगा। पेयर ऑफ ट्रीज, ठीक है। आइडेंटिकल फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये भी सही है। तो 2 और 3 तो पक्का हो गया कि हमारा आंसर सही है। अब 2 एंड 3 का ऑप्शन है, इसका मतलब यहाँ से काम नहीं बन सकता, हमें 1 को भी चेक करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू पेयर, क्या मीनिंग होता है इसका, कि इट इज इंपॉर्टेंट टू पेयर, PARE वाला जो पेयर है इसका क्या मीनिंग होगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू पेयर, टू ट्रेन। इट इज इंपॉर्टेंट टू पेयर, पेयर मीन्स टू ट्रेन, किसी चीज को ट्रेन करना। इट इज इंपॉर्टेंट टू पेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ, यस। सो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। पेयर मतलब ट्री, पेयर मतलब जोड़ा, और पेयर मतलब टू ट्रेन समथिंग, समवन फॉर समथिंग। क्वेश्चन नंबर 27, सिनेंस, स्कॉन्स एंड स्कॉन। सिनेंस, सबसे पहले यहाँ देखेंगे सिनेंस। सिनेंस मतलब होता है टू अट्रैक्ट समवन, सम्मोहित करना। सिनेंस जो पहले वाला वर्ड है उसका मतलब है सम्मोहित करना। ठीक है, उसके बाद स्कॉन्स, स्कॉन्स मतलब होता है खाना, चाय के साथ कुछ खाना। स्कॉन्स मतलब कुछ खाना, चाय के साथ कुछ खाना। और स्कॉन रीडिंग, यहाँ पर भी स्कॉन का मतलब होता है किसी चीज को निगल जाना। ठीक है, किसी चीज को खाते समय निगल जाना।
तो यहाँ SCON reading on the graph indicated the correct value output of the experiment. Those who practice spiritualism are at times seen to participate in a seance. कि जो प्रैक्टिस करते हैं इसकी मोरालिटी की, क्या वो सब लोग वही होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं? दोज हु प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, आर एट द टाइम सीन टू पार्टिसिपेट इन अ सीनेंस, कि वो इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं कि वो सामने वाले को हिप्नोटाइज कर लेते हैं. आपने देखा बहुत सारे आजकल न्यूज चैनल पे, आज तक पे आप देखो डेली दिखाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, मैं नाम बोलना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे, कि वो बहुत बार इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि सामने वाले को सम्मोहित कर लेते हैं, कि उसको एकदम वो बस कहता है जो भी है यही है बस, अब इसके अलावा मेरा कोई नहीं है. ठीक है, तो ए हमारा ठीक है अकॉर्डिंग टू द सेंस. दे एंजॉयड ईटिंग द स्कॉन दैट वर सर्व टू देम इन अ एक्सक्लूसिव क्लब. क्लब की कहाँ से बात आ गई? चाय के साथ उनको कुछ खाने के लिए दिया गया, यहाँ तक समझ में आता है. द स्कॉन रीडिंग ऑन द ग्राफ इंडिकेटेड द करेक्ट वैल्यू आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. कुछ रीडिंग कर रहे थे वो लोग. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो आंसर होगा वो 1 और 3 था, लेकिन 3 तो ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, सो द राइट आंसर इज ओनली 1. ओके, देन ट्रूइज्म एंड अल्ट्रुइज्म. ट्रूइज्म क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ट्रूइज्म मतलब होता है एकदम पक्का, एकदम सच्चा. और अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? वन हु बिलीव्स इन सोशल सर्विस. अल्ट्रुइस्ट कौन होता है? वन हु बिलीव्स इन सोशल सर्विस. कोई सोशल सर्विस कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट. तो अल्ट्रुइस्ट अटर्ड बाय द सीर कवर्ड. अटर्ड मतलब होता है बोलना, तो अल्ट्रुइज्म तो बोलना, बोल कैसे सकते हैं? अल्ट्रुइज्म इज अ सर्विस which can be done by someone. That one has to reap what one sows is a truism. जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा. क्या ये सत्य है? हाँ जी, बिल्कुल सही है ये. Altruism uttered by seer covered the higher levels of spiritual knowledge. जो altruism है, परोपकारिता है, जिसमें हम परोपकार करते हैं एक दूसरे के लिए, क्या वो कोई बंदा बोल सकता है? क्या बोल के बता सकता है? नहीं. सो द राइट आंसर इज ओनली 1. क्वेश्चन नंबर 29. कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रेगुलर कुछ घटना, मतलब होना है ना, कोई चीज जो रेगुलरली एक ही टाइम पे घटित हो रही है. और कॉन्सिक्वेंट मतलब होता है रिजल्ट. बोलते हैं ना व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंट ऑफ दिस, इसका आउटकम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है. तो कॉन्सिक्वेंट, द पास्ट इज ऑफ द लिटिल कॉन्सिक्वेंस व्हेन वन इज विलिंग टू ब्रेवली फेस द चैलेंजिंग ऑफ फ्यूचर. कि जब कोई व्यक्ति फ्यूचर के कुछ चैलेंजेस को फेस करना चाहता है, तो ये जो है एक बहुत लिटरल कॉन्सिक्वेंस है. सो द राइट आंसर इज बोथ 1 और 2, दोनों का सही प्रयोग किया गया है. क्वेश्चन नंबर 30, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये. सीज. एक सीज का मतलब होता है जब्त करना. ये वाला जो सीज है इसका मतलब है जब्त करना. सेकंड नंबर पे जो सीज है इसका मतलब है टू स्टॉप, किसी चीज को रोकना, है ना. और एक क्रीज बोलते हैं ना एकदम बिल्कुल अच्छे से. जैसे अब कोई आर्मी में जाता है या नेवी में जाता है, तो आपने देखा कितने वेल बिहेव्ड पर्सोनल्स होते हैं, कितने वेल बिहेव्ड अधिकारी होते हैं. एकदम कपड़ों की उनकी एकदम क्रीज बनी होती है और हेयर प्रॉपरली कट होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रीज. ये वही वाला क्रीज है. ठीक है, तो अब बात करते हैं मिलिट्री पर्सोनल आर रिक्वायर्ड टू बी अटायर्ड, है ना. उनको माना जाता है कि वो ड्रेस्ड हो इन ट्राउजर्स विद अ नाइफ एज लाइक क्रीज. एकदम चाकू की धार जैसी क्रीज होनी चाहिए, कि एकदम आपकी शर्ट पहने हुए दिखाई दे कि हाँ आप कोई अधिकारी हैं. तो इसमें ऑल 1, 2 और 3 हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 31. लिसन विद हाफ एन ईयर. लिसन विद हाफ एन ईयर नाम से ही पता लग रहा है ना, आधी अधूरी बात को सुनना. कहते हैं ना ओ ही स्टूपिड, ही लिसन विद हाफ एन ईयर. ठीक है, बहुत बार कहा जाता है कि अरे ये पागल है, ये आधा अधूरी बात सुन के घर से चला जाता है और सामान खरीद के कुछ और ले आता है. तो लिसन विद हाफ एन ईयर याद रहेगा आज के बाद. लिसन विद हाफ एन ईयर, आधी बात सुनना, आधी बात भूल जाना. डाइड इन द वूल. डाइड इन द वूल होता है, कहते हैं ना कि अब
इस जो वूल है इस पे मैंने कलर कर दिया है, अब इसका रंग कभी खराब नहीं होगा। अब इस वूल पे किसी कपड़े पे जब हम रंग चढ़ा देते हैं तो वो कभी खराब नहीं होता है ना। आप कहोगे कि वोकैबुलरी थोड़ी सी खतरनाक पूछी है इस बार, ये ट्रू है, बिल्कुल सच है बच्चों, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, आपके लिए अकेला मुश्किल नहीं है कि आप घबरा रहे हो कि पेपर बहुत मुश्किल है। अगर मुश्किल पेपर है तो वो सबके लिए है, और आप सभी को वेट करना है इसका रियल मार्क्स का कि कितने पे कट ऑफ बनती है, क्या होता है। लेकिन अगर डिफिकल्ट पेपर है देन इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, यू हैव नो नीड टू मच वरी अबाउट दिस। they have given you some new synonyms this time, some new vocabulary this time, some new idioms and phrases this time, but I always suggest RS Agarwal is the best book। 10,000 questions in objective form book आती है मार्केट में, RS Agarwal 10,000 objective questions की एकदम मतलब सुपर ऑथेंटिक बुक है। जो मेरे से स्टूडेंट्स ऑफलाइन में क्लासेस हुई हैं जिन बच्चों की, उनको मैंने RS Agarwal से बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स याद करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया था। अब कितना उन्होंने याद किया ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, डाइड इन द वूल, डाइड इन द वूल मैं आपको बता रही थी कि जब हम किसी कपड़े के ऊपर रंग कर देते हैं तो उसका रंग हटता नहीं है, बहुत पक्का हो जाता है ना। तो अनचेंजिंग एंड फर्म, दो वर्ड याद कर लिए आपने। स्पीक विद द, लिसन विद द हाफ ईयर, कि क्या करना, आधी बात सुनना, आधी बात इग्नोर कर देना। डाइड इन द वूल, जब हम किसी कपड़े के ऊपर रंग कर देते हैं तो वो चेंज नहीं हो पाता है ना, तो मतलब वेरी फर्म इन डिसीजन, सो दैट इज कॉल्ड डाइड इन द वूल। लेट स्पीकिंग डॉग लाई, कुछ न्यू इडियम फ्रेजेस दे हैव आस्क्ड यू दिस टाइम। लेट स्पीकिंग डॉग, स्लीपिंग डॉग लाई, वो कहते हैं कि जो सो रहा है उसको सोने दो। डोंट इंटरफेयर, है ना, नॉट इंटरफेयर इन अ सिचुएशन वेयर इंटरफेस में एक्सक्रिबेट मैटर्स, कि जो सो रहा है उसको सोने दो। लेट स्लीपिंग डॉग डाई, कि उसको सोने दो, उसको मरने दो। यू हैव नो नीड टू इंटरफेयर इन सो मैनी मैटर्स। अ स्टिच इन टाइम, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, है ना, समय के अनुसार आपको कुछ बचत करने की भी आदत होनी चाहिए। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि समय के अकॉर्डिंग आपको कुछ बचत करने पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसका हमारा इडियम है ये, a stitch in time saves 9। The right answer is timely addressal of problem prevents future excavation of the same, कि समय रहते हमें कुछ चीज़ों के लिए सावधान हो जाना चाहिए। फाइट फायर विथ फायर, आग की लड़ाई आग से, है ना, बोलते हैं ना आई फॉर एन आई, सुना है इडियम फ्रेज, यू हैव लिसन्ड इट मैनी टाइम। आई फॉर एन आई, मुझे आंख के बदले में आंख का सिद्धांत, कौन सा नेता था जो ये बात बोलता था कि आई फॉर एन आई, मुझे आंख के बदले में आंख चाहिए, ठीक है। बहुत सारे हमारे हिस्ट्री में ऐसे लीडर्स हुए हैं जो ये स्टेटमेंट बोलते थे कि आई फॉर एन आई। ऐसे ही अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो वहां पर ये स्टेटमेंट फिट हो सकती है, फाइट फायर विद फायर, कि अभी उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया तो चाइना ने भी अपना टैरिफ बढ़ा दिया, है ना। तो फाइट फायर विथ फायर, कि आग का जवाब आग से, अगर वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने भी अपना टैरिफ बढ़ाकर उनको जवाब दिया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूज द सेम फोर्स और स्ट्रेटेजी ऑफ वंस ओपोनेंट टू काउंटर देम, वही स्ट्रेटेजी का प्रयोग करना जो सामने वाला हमारा ओपोनेंट, मतलब सामने जो हमारा क्या बोलेंगे विरोधी है, जैसी स्ट्रेटेजी वो यूज कर रहा है सेम वैसी ही स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंड नैरो, है ना, बोलते हैं एक डायलॉग है कि प्रेम गली अति सांकरी, है ना, कि जो भगवान तक पहुंचने वाला जो रास्ता है वो बहुत नैरो एंड स्ट्रेट है, जो जितना हम्बल और जितना सिंपल है वो उतना जल्दी वहां पहुंच जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंड नैरो मीन्स ऑनेस्ट एंड morally accepted way of being, कि you are, if you are very simple and you are very honest, definitely you कैन क्रॉस द स्ट्रेट एंड नैरो वे, कि आप जितने सिंपल हैं, जितने हम्बल हैं, जितने मोरली स्ट्रांग हैं, उतना जल्दी से आप कहीं पहुंच जाते हैं। तो ये इडियम फ्रेजेस आपको मैं
I'm trying my best to make you learn all these idioms and phrases. ठीक है. Someone's ears are burning. किसी के कान जल रहे हैं. समझ में आ रहा है कि किसी के कान जल रहे हैं. इसका मतलब ये तो एक्चुअल में तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के कान जल रहे हैं, लेकिन ये इडियमिक एक्सप्रेशंस होते हैं जब हम डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं कहना चाहते, इनडायरेक्टली कुछ बात वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इडियम्स का प्रयोग किया जाता है. द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम, कि किसी के कान जल रहे हैं, मतलब किसी के कानों में कुछ भरा जा रहा है, कुछ उल्टा सीधा किसी व्यक्ति के बारे में उसको बताया जा रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38. टर्न्स वन स्टमक. टर्न्स वन स्टमक का मतलब होता है कि किसी को बोलते हैं ना कि टर्न्स वन स्टमक, मतलब कि अब मैं कैसे बताऊं हिंदी में, इसका मतलब होता है कि किसी को घबराहट होना. जैसे पेपर में आप लोग जाते हैं तो यू फील टर्न योर स्टमक, की घबराहट हो रही है, अंदर से आपको फील हो रहा है कि क्या होने वाला है, व्हाट टू बी नेक्स्ट. ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बीइंग प्लेग्ड बाय स्टमक अपसेट, अनेबल टू कॉप विद द चेंजेस, स्विच साइड्स while asleep, being nauseous by something or someone. So the right answer is this. किसी चीज से परेशान होना, घबराहट होना, उतावलापन होना. द वर्ल्ड इज योर ऑस्टर. बोलते हैं ना ये संसार तुम्हारा है, तुम जियो, जाओ, जो करना है वो करो. द वर्ल्ड इज योर ऑस्टर. अब ये संसार तुम्हारी इच्छा पे चलेगा, तुम जैसा करना चाहते हो वैसा करो. यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ. तुम जो चाहते हो वैसे जियो, जैसा जीना चाहते हो उस तरीके से रहो. ठीक है. कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वॉटर्स. ठीक है. कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वॉटर्स मतलब होता है टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड. कुछ सोचे बिना अच्छा करना. टू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, कुछ सोचे बिना अच्छा करना. ओके. चलिए, ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन हमारे से पूछे गए हैं. These are the new pattern based question. S1, S2 is given to you and they have given you statement 1, statement 2. Actually, I also take logical reasoning for CAT. है ना. तो I know कि these are the questions based on logical reasoning, not English. These are the questions based on logical reasoning portion है, लेकिन अब English में उन्होंने पूछ लिया तो क्या कर सकते हैं. We should accept it as a pattern of the exam. यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं. इसमें आपको बताना है फर्स्ट विल कंफर्म द सेकंड और नॉट. पहले आप ये समझो इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, है ना. इसमें ना आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं. उसमें उन्होंने ये बताया है कि फर्स्ट विल कंफर्म द सेकंड और नॉट, सेकंड विल कंफर्म द फर्स्ट और नॉट, एंड फिर एक ऑप्शन था हमारा कि रेनफोर्सेस द फर्स्ट और सेकंड, कि जो फर्स्ट वाला है क्या वो कंट्रास्ट तो नहीं करता है, क्या कंट्राडिक्ट तो नहीं करता है, क्या कंफर्म कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को या नहीं. पढ़ते हैं इसको. द स्नोवी एल्ब्रेट्रोस इज अमंग द लार्जेस्ट बर्ड दैट फ्लाई इन द वर्ल्ड. कोई बर्ड है उसकी बात कर रहे हैं वो बहुत ऊंचाई तक जाता है उड़ने के लिए. It has the widest wingspan among all birds with length reaching up to 12 feet. किसी बर्ड की बात की है उन्होंने. 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट नेक्स्ट एग्जाम में आपको आइडिया होगा हाउ टू सॉल्व देम. कोई बर्ड है उसकी बात की है स्टेटमेंट 1 में. सेकंड टाइप में ना, सेकंड स्टेटमेंट में उसी बर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया. इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर कोरिलेटेड. नंबर 1, ट्राई टू यूज लॉजिकल reasoning. First statement is telling the second. First statement is telling first statement and second are interconnected. They both are interconnected. Second statement is the next part of first statement. मान लो मैंने कहा कि बालनो एकेडमी is the excellent organization. It has so many students and teachers. तो I am telling you कि second statement explaining the first, है ना. तो यहाँ पर क्या है, second statement telling the first. It is going to explain about first. सेकेंड वाली फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रही है. तो इसमें हम ये कह सकते हैं रेनफोर्सेस द फर्स्ट. वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर था वो सी था, कंफर्म द फर्स्ट. द सेकेंड स्टेटमेंट कंफर्म द फर्स्ट. जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को कंफर्म कर रही है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 42, अ साइंटिफिक थ्योरी इज फर्स्ट प्रपोज्ड एज अ हाइपोथेसिस। कोई साइंटिफिक स्टोरी है, उसको हाइपोथेसिस कह दिया कि ये थ्योरी मानी जाएगी, अप्लाइड है। आफ्टर इट इज सब्जेक्टेड टू इंक्वायरी एंड इज प्रूवन इट बिकम्स अ थीसिस। कोई साइंटिफिक थ्योरी है, उसको हाइपोथेसिस किया जा रहा है, उसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, अगर इंक्वायरी होती है और वो इंक्वायरी प्रूव्ड हो जाती है तो ये थीसिस बन जाएगी। जो साइंटिफिक अभी तक अप्रोच है वो थीसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि द सेकंड स्टेटमेंट, क्या सेकंड स्टेटमेंट प्रूव्स द फर्स्ट, हाइपोथेसिस द फर्स्ट, चैलेंजेस द बर्डन ऑफ, चैलेंजेस तो किसी भी कीमत पे नहीं है, एक्सटेंडेड द फर्स्ट, फर्स्ट वाले को ही एक्सटेंड करके सेकंड स्टेटमेंट बनी है ना, फर्स्ट वाले को ही एक्सटेंड कर दिया तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई कि साइंटिफिक स्टडी एक थीसिस है, साइंटिफिक स्टडी एक हाइपोथेसिस है, अगर वो प्रूव हो जाती है तो हम उसको क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। तो द राइट आंसर इज बी। द मैन हंट फॉर द परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर स्टेट। पूरे राज्य में कुछ जो क्राइम हो रहा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। देयर वॉज अ डीप पब्लिक एंगर ट्रिगर्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम। लोग आवाज उठा रहे हैं उस क्राइम के लिए, लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रिगर्ड मतलब किसी को टारगेट कर रहे हैं उस क्राइम के लिए। तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में कोई रिलेशन है? सबसे पहले इन क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट्स यही देखते हैं कि इफ देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, यस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, the manhunt, yes there is a relation between first and second, the second statement follows the first, जो second statement है वो first को follow कर रही है, yes। क्वेश्चन नंबर 44, awareness about one's own पर्सनालिटी टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में अवेयर होना चाहिए। क्या ये सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। सेल्फ अवेयरनेस इज डिफिकल्ट गोल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लग रहा है सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को रिलेट कर रही है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि जो अपने बारे में हमें अवेयरनेस अबाउट वंस ऑन पर्सनालिटी इज मैंडेटरी, है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेकंड में वो कह रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस इज अ डिफिकल्ट गोल। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत मुश्किल गोल है जो शायद ही कोई पूरा कर सकता है। आपको लग रहा है दूर दूर तक कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं? अवेयरनेस के बारे में आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्ट द सेकंड स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट द फर्स्ट। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्यों? एक तरफ तो वो अवेयरनेस की बात कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में ये सीसेट का पैटर्न है बच्चों, इसमें सीसेट में इस टाइप के क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन चेंज द कंटूर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम, जो फ्रीडम है वो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इंडिया इज टुडे पोइज्ड टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ भाई, फ्रीडम तो देनी पड़ेगी। किसी भी इकोनॉमी में अगर फ्रीडम नहीं होगी तो लोग वहाँ पर दे कैन नॉट डू द वंडर्स। तो फ्रीडम तो, लिबरलाइजेशन तो होनी चाहिए। इसी कारण, इसी फ्रीडम के कारण जो इंडिया है वो आज टॉप इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड में उसकी काउंटिंग की जा रही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें क्या है? It correlate the first, the second statement correlate the first। जो second statement है वो first को correlate कर रही है। Question number 46। The final outcome can never be predicted incontrovertibly। कि जो फाइनल आउटकम है किसी चीज का उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिना सोचे समझे। ऑल आउटकम्स आर बेस्ड ऑन वेरिएबल्स दैट कैन नॉट ऑलवेज बी फुली अंडरस्टूड। जितने भी आउटकम होते हैं वो सारे वेरिएबली होने चाहिए, मतलब लिंक्ड होने चाहिए। बिना सोचे समझे हम किसी भी स्टेटमेंट को किसी दूसरी स्टेटमेंट के साथ नहीं वो कर सकते। सो द सेकेंड स्टेटमेंट रेनफोर्सेस द फर्स्ट टू एन एक्सटेंट। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाले को किसी हद तक बढ़ावा दे रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली वो वही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है?
मास्टरी ओवर एनी आर्ट फ्रॉम रिक्वायर ईयर्स ऑफ डेडिकेशन एंड प्रिजर्वेंस। वो कह रहा है किसी भी चीज में जब हम मास्टरी होती है, मतलब हमारा एक्सपर्टाइज होती है, इसमें बहुत लंबे समय तक हमने उस सब्जेक्ट के बारे में प्रैक्टिस की होती है, इसलिए हमारी वहां पर मास्टरी होती है। इट टेक्स 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। ये यहाँ से कैसे डिराइव हो गया, है ना? किसी भी सब्जेक्ट के लिए मास्टरी करना, मास्टर होना, इट विल टेक टाइम, बट हाउ कैन यू से दैट इट विल टेक 10,000 hours? It depends upon person to person. So many time a student can crack CDS exam only in 6 months, and in on the other side a student can take 5 years to crack the CDS exam. It depends upon the person to person to get the mastery over something, but we cannot say, assume, है ना, assumption based question है, we cannot assume that the person will take 10,000 hours to have the mastery. So according to me, second cannot be derived from the first. So the right answer is second is not consistent with the फर्स्ट। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाले से कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द ब्यूटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी रेस्ट इन द ग्रेटनेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया की जो ग्रेटनेस है वो किस चीज में छुपी है? द ब्यूटी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी रेस्ट इन द ग्रेटनेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की सुंदरता भारत के संविधान में छुपी हुई है। जितना सुंदर भारत का संविधान है उतना ही सुंदर भारतवर्ष है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड्स द कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ द कंट्री सिविलाइजेशंस। जो किसी भी देश की सिविलाइजेशन होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड होती है कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वैसा ही वो देश होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है लॉज मेड बाय द कंट्री, द लॉज followed by the people of the country. If the laws are weak, the people will not feel safe. So the constitution of any country means to say the laws of any country will decide the level of the country, will decide the level of the people, the freedom they are feeling, है ना, कैसी स्वतंत्रता वो महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि the constitution of India uphold the collective values of the country's civilization ethos. So contradict the assertion नहीं, has no connection with the first, ऐसा तो नहीं है, has no connection with the first. So the question number 48, the right answer is A, connect with the mention of Indian democracy of the first. Then question number 49, रोसिएट इज एन एडजेक्टिव यूज फॉर रोज फ्लावर। रोसिएट कोई एडजेक्टिव है जो रोज फ्लावर के यूज हुआ। द रोज इज अ पावरफुल पोएटिक सिंबल इन मैनी लैंग्वेजेस। कोई रोज है वो पावरफुल पोएटिक सिंबल की तरह यूज किया जाता है। बहुत सारी पोएट्रीज में रोज को एक सिंबल माना गया है। रोज इज द सिंबल ऑफ लव, है ना। सो इट इज अ पावरफुल सिंबल यूज्ड बाय in many languages. So I think the second expand the first, जो second है वो first वाले को expand कर रहा है, ठीक है। The early bird gets the worm to go about one's task expeditiously, it is to achieve one's goal. इसका आपस में S1 S2 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। जो अर्ली बर्ड्स हैं उनको कुछ वर्म की जरूरत होती है। टू गो अबाउट वंस टास्क, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या है? कंट्रास्ट विद द फर्स्ट। ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस में इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक करवाती हूँ सभी स्टूडेंट्स को। SVO जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास लेते हैं उन्हें ये ट्रिक पता होगा। सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन होता है या आर्टिकल आएगा या प्रोनाउन आता है, फिर वर्ब लिखते हैं फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि SVO में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमें ना सब्जेक्ट ढूंढना है। 4 ऑप्शन में कौन सा वर्ड है जो नाउन से शुरू हुआ है, आर्टिकल से शुरू हुआ है या प्रोनाउन से। दिस इज ट्रिक 1। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो आप ना कंपल्सरी पेयर बना लेना। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करोगे? कंपल्सरी
पेयर बना लेंगे, कोई तो ऐसे दो लाइन होंगी जो आपस में एक दूसरे से रिलेट होती होंगी, तो कंपलसरी पेयर से हम ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब यहाँ हम देखें कंसीडर टू बी, ये मेरा क्वेश्चन का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एंड द ओनली, कभी देखा है कि हमने किसी स्टेटमेंट की शुरुआत की हो, एंड द ओनली रीजन इज दिस वी सेलिब्रेट दीपावली, सब्जेक्ट क्या लग रहा है, वी सेलिब्रेट दीपावली, दिस इज द ओनली रीजन। Subject must tell you about the whole picture, है ना, subject must tell you about the whole idea, so it cannot be such a statement which has no relation with the next statement. Subject will give you the idea of the whole passage. So इसमें हम देखें तो हमारा subject क्या है, R से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि R में हमारे पास article भी है और noun भी है, adjective भी है, मतलब ये subject बन सकता है, क्योंकि article है, तेलंगाना पीजेंट्स की बात की गई है, नाउन भी है। तो आर से कितने ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है, बहुत बढ़िया जी। द तेलंगाना पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1940 इज ऑफन, अच्छा इज ऑफन के बाद अब क्या करेगा, कंसीडर्ड होगा, इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी, सीधा आर के बाद पी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखेंगे सब्जेक्ट, इसमें इन क्वेश्चंस की खासियत है, आपको सब्जेक्ट थोड़ी सी भी, ये वाला जो ट्रिक है इस पे आप मेहनत कर लोगे तो सब्जेक्ट आपको डायरेक्ट दिखाई दे जाएगा बिना मेहनत के, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बच गया क्यू और आर। क्यू और आर में अगर हम देखें तो ज्यादा चांसेस आर के दिखाई दे रहे हैं। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद, वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद के साथ इस तो आ नहीं सकता, तो आर के बाद एस नहीं होगा, सी ऑप्शन को काट दिया। ऑफ एंड विद सोशल मूवमेंट्स नॉनलेस विद देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, सो यहाँ पे हमें पेयर क्या बनता दिखाई दे रहा है, कंपलसरी पेयर दिखाई दे रहा है आर और क्यू का, विद देयर, है ना। सो द राइट आंसर इज ए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, what should be the statement that will be the subject, most of the minerals are nationalized, is possible हमारा सब्जेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज, अच्छा एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज पॉसिबल, कंपलसरी पेयर देखो कैसे ढूंढते हैं, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन, है ना। ये कंपलसरी पेयर दिखाई दे रहा है, एस क्यू ढूंढो जल्दी से, एस क्यू कहाँ है, एस क्यू एस क्यू एस क्यू कंपलसरी पेयर दिख रहा है। अगर कभी आपको फर्स्ट स्टेटमेंट ना मिले तो कंपलसरी पेयर पे चले जाना। अब कंपलसरी पेयर में आपको यहाँ पर एक और भी दिख गया, एस क्यू आर ढूंढो कहाँ है हमारे पास, ओनली ऑप्शन ए, ठीक है। कुछ समझ आ रहा है, पैरा जंबल आगे कभी भी गलत नहीं होंगे, मैं हमेशा बच्चों को गारंटी देती हूँ कि पैरा जंबल जो ट्रिक मैं करा रही हूँ अगर आप इस ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे तो 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बच गया मेरे पास, आर पॉसिबली दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन का सब्जेक्ट आर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कई बार तो डायरेक्ट एक ही आंसर होगा, वो हमारा आंसर बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे क्या एस, देखो P और Q क्वेश्चन का सब्जेक्ट नहीं है किसी भी कीमत पे, बच गया या तो R होगा या S होगा, R होगा या S होगा, तो दो ऑप्शन पे चले गए, R के बाद P और S के बाद Q। द एंटायर सोसाइटी और ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, रेटिकल और लिमिटेड, फिर कह रहा है S सोशोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स अलोंग टू, सो द राइट आंसर इज डी, ठीक है। आप लोग इसी ट्रिक पे सॉल्व करके देख लीजिएगा घर पे एक बार, एंड यू विल गेट एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस मिनिमम राइट विद दिस मेथड, है ना। अच्छा, आर इम्पॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट नहीं है। आर मोर डिफेंसिव, ये हमारा क्वेश्चन का सब्जेक्ट नहीं है। व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ हम देखेंगे क्या कह रहा है कि द राइट आंसर इज क्यू, ऑल्दो मोस्ट सोशल, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट तक पहुंचना है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, देन इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वी कैन कनेक्ट विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ऑल्दो मोस्ट सोशल, कभी आपने देखा है कोई स्टेटमेंट हम ऐसे लिखते हैं, आर मोर डिफेंसिव, है ना, अगर ऐसा लिख भी दे, वेयर इज द क्वेश्चन मार्क,
for 1%. If we write like that कि are more people suffering from corona, so where is the question mark? There is no question mark. It means we cannot start any statement with the helping verb until or unless there is a question mark in the question. So ये दो तो हमारे eliminate हो गए option. That Davis will not be the subject of the question. What should be the subject of the question? Q. Q से कितने ऑप्शन है जो सब्जेक्ट बन रहे हैं? Only single option B. ठीक है? Use that short trick to solve such question. You will see a sea change in solving your paper. Okay, try to solve your paper with the help of this trick. This will not be our subject. Why? इन इंडिया, कभी ऐसा देखा है? आप इतनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लिखते हैं, कभी ऐसा देखा है? इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसे कोमा लगा कर, है ना? द सब्जेक्ट मस्ट टेल यू अबाउट द होल पिक्चर. सब्जेक्ट क्या होगा? जो पूरी पिक्चर के बारे में आपको डिफाइन करेगा. तो पक्का है कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है किसी भी कीमत पे. हैज विटनेस, ये भी नहीं है. सिर्फ दो बच गए. क्या? या तो आर होगा या क्यू होगा. वन ऑफ द, मुझे तो क्यू लग रहा है. वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, है ना? ये रूल आपने पढ़ा है नाउन चैप्टर. नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. नाउन प्रोनाउन विल बी प्लूरल एंड वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. तो क्यू के बाद एस. क्यू के बाद एस कंपलसरी पेयर ढूंढो सब बच्चे एक बार. कहाँ पे है? क्यू के बाद एस कंपलसरी पेयर देखो जल्दी से. कहाँ दिखाई दे रहा है? क्यू एस. क्यू एस, ये रहा क्यू एस कंपलसरी पेयर है. सो द राइट आंसर इज क्या हो जाएगा? कंपलसरी पेयर क्यू के साथ एस बनता हुआ दिखाई दे रहा है. आगे देख लेते हैं. वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री हैज विटनेस इम्प्रेसिव ग्रोथ. हाँ, क्यू एस आर. क्यू एस आर, ऑप्शन डी. Okay, question number 56. Now question number 57. यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढो. was formed, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं. अरे ये क्या हो गया? सारे एलिमिनेट हो गए. अगर कभी ऐसा हो ओरिजिनल पेपर में कि सारे एलिमिनेट हो गए तो हम कंपलसरी पेयर पे चले जाएंगे वापस. कंपलसरी पेयर ढूंढते हैं, कोई बात नहीं. इसमें क्या है? was formed in this. अच्छा, क्या फॉर्म्ड हुआ? इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा. हाँ, इन इंडिया, इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा वॉज फॉर्म्ड. कुछ बनाया गया लोगों की आवाज उठाने के लिए. तो क्यू के बाद पी. क्यू के बाद पी कंपलसरी पेयर है. क्यू के बाद पी हमारा कंपलसरी पेयर है अगर, तो कहाँ है? ए और सी में. अब आगे पढ़ लेते हैं इसको. क्या? in Western India, the सार्वजनिक सभा was formed in 1870 to give voice to the demands. डिमांड्स किसकी? एंड नीड्स ऑफ द पीपल, है ना? डिमांड्स एंड नीड्स सेम है ना? एंड से हमेशा किस चीज को जोड़ते हैं? जो कॉमन होती है. अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ ना राम, तो मेरी मजबूरी है मैं यहाँ शी नहीं लिख सकती, सीता लिखूंगी. एंड से हम कभी भी किसी चीज को जब कनेक्ट करते हैं, बोथ साइड देयर मस्ट बी द सेम थिंग्स. तो डिमांड्स एंड नीड्स सेम हो गया. तो क्या आ गया हमारे पास? कंपलसरी पेयर क्यू पी एस. क्यू पी एस. सो द राइट आंसर इज सी. कुछ सीखने को मिल रहा है. आई होप कि आप लोग सीखेंगे और सेम यही मेथड ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 58. इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? या तो पी या फिर आर. पी और आर अगर हम देखें तो ए और बी हमने एलिमिनेट कर दिया. द अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेटर ड्रीम्स, द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट टुडे आर बट अ स्टेप टुवर्ड्स. ओके, 58 का आंसर है ये. ठीक है, आप लोग इसी मेथड पे और ट्राई कर लेना क्वेश्चंस. यू विल फील गुड if you will solve your questions on based of the same method. ठीक है. 59, the right answer is A. 60, the right answer is B. Okay, इसी मेथड को आप लोग फॉलो करके घर पे सॉल्व कर लेना एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. S1 S6. इसमें भी यही मेथड हम यूज कर सकते हैं. कोई भी दो स्टेटमेंट का कंपलसरी पेयर बनाना है आपको एंड यू मस्ट सॉल्व
them according to that. Question number 61, इसमें मैं आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि these are the very time taking questions. Okay. 61, the right answer is D. 62, the right answer is the right answer is C. 63, the right answer is A. 64, the right answer is C. '65, right answer is B. 66, the right answer is C. 67, the right answer is C. 68, the right answer is C. 69, the right answer is D. And 70, the right answer is A. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अच्छा, ये बहुत थोड़ा सा लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन इस बार पूछे हैं फर्स्ट टाइम. आपको वोकैबुलरी ना थोड़ा सा डिफरेंट वे में इन्होंने पूछी है इस बार. जैसे वर्नाकुलर, इसमें ना आपको क्या करना है, वी शुड यूज क्या बोलेंगे, यू शुड यूज elimination method, because without elimination method you cannot pass your UPSC exam anyhow. जिसको elimination नहीं आता ना उससे GS सॉल्व होगी ना इंग्लिश सॉल्व होगी. इसमें आपको दो ऑप्शन कम से कम पता होने चाहिए. सीधा हम ऑप्शन पे चले जाएंगे. मैं आपको इसका भी ट्रिक करवा रही हूँ. एक दो क्वेश्चन आप लोग मेरे सामने सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि वर्नैकुलर. वर्नैकुलर एक लैंग्वेज होती है ना. वर्नैकुलर क्या होती है, आम बोलचाल की भाषा. वर्नैकुलर क्या होती है, लैंग्वेज दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ. ठीक है. और रेटोरिक, रेटोरिक मतलब होता है अलंकार. अलंकार पता है ना, जब हम किसी को कुछ अच्छा सा बताने के लिए कुछ अलंकार का प्रयोग करते हैं. तो वर्नैकुलर क्या होता है, लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, या वो लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. जनरली हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं. तो ए का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज यूज्ड फॉर अ स्पेशलाइज्ड पीपल. इसका जो राइट आंसर है वो डी है. हमने यहाँ से पकड़ा ए का हमारा आंसर है लैंग्वेज यूज्ड फॉर अ स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन. ठीक है. फिर रेट्रिक, रेट्रिक मतलब होता है लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल. पार्लेंस, ये सारे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है. सो द राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 72, इसमें भी कोई दो वर्ड आपको पता होने चाहिए. ठीक है. एक्सोनरेट, एक्सोनरेट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी. ठीक है. इंटरसाइंड मतलब होता है बैन, किसी चीज को रोकना. वेनरेबल, वेनरेबल मतलब होता है रिस्पेक्टेड, वैल्यूड, है ना. तो यहाँ डी का हमारा हो गया 4 और ए का हमारा हो गया बैंड. बैंड का कहाँ पे है, बिटवीन पीपल.
ऑफिशियली कैंसलिंग द पावर ऑफ एन एग्रीमेंट, ए का 1, ठीक है। तो यहाँ देखो ए का थिंग्स occurring बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी, इसका हम ऑप्शन देखते हैं कहाँ है। 72 में क्या है, ए का 1 और वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड, सी का 4, सी का सो द राइट आंसर इज, इसमें आप लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। 113 वो क्वेश्चन नंबर 73 में हमारा क्या आंसर होगा। द राइट आंसर इज सी। आई एम मार्किंग द आंसर्स सो दैट यू कैन मैच योर क्वेश्चन। डायरेक्ट वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है बस वोकेबलरी को पूछने का, कि दे आर गिविंग यू वोकेबलरी इन द मैच द फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 74, the right answer is C. Then question number 75, the right answer is 75, the right answer is D. Question number 75, the right answer is D. Then question number 76 में the right answer is B for Bombay. Question number 76, the right answer is B for Bombay. Question number 77, the right answer is B for Bombay. Question number 77, the right answer is B for Bombay. Question number 78, the right answer is D. Question number 79, the right answer is A. Question number 80, the right answer is A. Okay, then this is also the new pattern of the question. Question number 81 to 85, they have given you some new type of question. S1, S2, S3, there are 3 statements and they have used that word, the same word they are using, ठीक है, the same word they are using in every statement. You have to check in which statement the used word is right or wrong. कुछ words use किए हैं, इसका मैं आपको आंसर बता रही हूँ। ये सारे vocab based questions हैं, so please gone through all these questions. इसमें vocabulary based questions हैं। क्या किया है कि कुछ words आपको दिए हैं, उसमें आपको check करना है। 82 the right answer is C. 81 the right answer is C. 82 the right answer is B. Then 83 the right answer is A. 84 the right answer is B. Then 85 the right answer is C. Okay, 85 the right answer is C. Got it? Then question number 86, these are some questions based on grammar. बहुत favorite question है. They are asking these type of question many times. Dash the process by which the state took over from the church. The registration of birth, death and marriages was complete by this in Europe. इसमें यहाँ हम देखेंगे कि क्या लिख सकते हैं. Besides मतलब होता है in addition to, है ना. Besides means इन एडिशन टू, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ बिसाइड्स की बात नहीं हुई है, कुछ प्लस नहीं हुआ है. लेटर मतलब बाद में इंस्टीड के साथ ऑफ आता है. सो द राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 87, डैश द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजीली. क्या लिखेंगे इसमें कि
dash the matter, unfortunately the matter was not settled, whatever नहीं होगा, whatever होता है कि whatever will be the reason, जो भी हो तुम्हें ऐसा करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 88 में dash the leaders comment despite the leaders. बाकी तो वर्ड्स की ना फिट ही नहीं हो रहे, इतना इजी क्वेश्चन दे रखे हैं ये वाले कि इसमें आपको सिर्फ उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि वो डायरेक्टली फिट होगा उस ऑप्शन में या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89. डैश द स्क्वाड also has a couple of new faces who are equally well qualified to play the forthcoming match. Meanwhile the squad, while मतलब होता है टाइम के लिए, तो टाइम की तो बात हुई नहीं है. meanwhile मतलब उसी के बीच में कोई और भी आ गया. The principal was addressing the students on the ways, the means of conducting the sports meet of the college dash responding. So इसमें क्या आंसर है हमारा? The right answer is further. The right answer is further. Okay. Question number 91. ये होमोफेन्स फॉन्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इसमें सेम वर्ड आपको दिया हुआ है, उसके आपको क्या बताने हैं, एडजेक्टली किस वर्ड का यूजेस कौन से स्टेटमेंट में ठीक है. तो एलिशिट, द राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 91. क्वेश्चन नंबर 92. द राइट आंसर इज 92. 92 में राइट आंसर क्या है हमारा? ये तो डायरेक्ट वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है. डियर स्टूडेंट्स, यू कैन चेक दीज क्वेश्चंस एंड ओनली चेक योर आंसर्स, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं है, ग्रामर का रूल नहीं है कि ग्रामर बेस्ड हमें समझना है या चेक करना है. क्वेश्चन नंबर 93. इमिटेटेड और intimated. 93. The right answer is D for Delhi. 94. The right answer is B for Bombay. 95. परसेप्ट और परसेप्ट ये होमोफोन्स होते हैं, ये याद ही करने पड़ेंगे आपको, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है. ठीक है. 10. क्वेश्चन नंबर 96. प्रैक्टिस. हाँ, ये 2020 का पैटर्न है. 2020 का आप CDS का पेपर देखेंगे ना, देन यू विल कम टू नो कि द सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन 2020. दे विल गिव यू अ वर्ड, you have to check whether the word is noun, pronoun, adjective और adverb. ठीक है. और उसकी सेंस में भी हमें उस वर्ड को यूज करना है. तो प्रैक्टिस का जो एक्यूरेट यूज है वो इस वर्ड में है. क्वेश्चन नंबर 96 का डी. 97 द राइट आंसर इज ए. 98 इन वर्ड्स का आपको डायरेक्टली मीनिंग पता होना चाहिए. 98 द राइट आंसर इज ए. 99 मतलब होता है नॉट मोरल, एमोरल मतलब नॉट मोरल. द राइट आंसर इज मर्डर कैन बी कैटेगराइज्ड अमोरल. अमोरल का होगा नॉट मोरल. द परस्यूट ऑफ विक्ट्री ऑफ आउटपोस्ट एट मोरल कंडक्ट. ठीक है. देन 100 का राइट आंसर है हमारा एमिग्रेट. वर्कर्स एमिग्रेट फ्रॉम प्रोविंस place to place. New laws were being enacted. Family decided to emigrate safe and secure country. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 101. हाँ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे इस बार, क्योंकि this time they have not given you parts of speech based question. They have given you questions in the form of match the following. तो इसमें सीधा हमें कोई से भी दो वो पहचानने हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब. पहले ये बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? V1 प्लस ING को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. तो सीधा हमने इसको D से C को 4 से मैच कर दिया. नाउन, शन वाले जितने भी वर्ड होते हैं याद कर लेना आगे के लिए. TION जितने भी ये वर्ड होते हैं ना जनरली नाउन होते हैं. तो हमने इंटेंशन नाउन से मैच कर दिया. ए का आंसर है 2. ए का आंसर है 2. सी का आंसर है 4. सी का आंसर है 4. ए का आंसर 2 पहले यहाँ से एलिमिनेट किया, और सी का आंसर है कंफर्म
इसकी 4, तो डायरेक्ट एलिमिनेशन से पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 102, 102 में देखेंगे नाउन, फिर से वही बात, शन वाले जितने भी वर्ड हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है। अब इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होते हैं, 2+v1, 2+v1 इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। फोर्थ हो गया सी का 4, सी का 4 हमारे पास 2 ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद शन वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं, यानी कि ए का 3, ए का 3, ए का 3 और सी का 4, सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 103, 103, 103 में देखेंगे नाउन क्या कह रहा है, जीरेंड, जितने भी आईएनजी वाले वर्ड होते हैं जीरेंड होते हैं, तो सी का 4, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, आयन शन वाले जितने भी वर्ड हैं ये होते हैं, यहाँ से एलिमिनेट करो, ए का 2, ए का 2, 2 ऑप्शन हो गए ए के 2 वाले, सी का 4, सी का 4, ठीक है। सो द राइट आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 104, इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, सेम क्वेश्चन ऐसे हम करवाते हैं बच्चों को लाइक दिस की वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन, बट दिस टाइम दे हैव चेंज द पैटर्न ओनली, द कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक है। नाउन, शन वाले वर्ड नाउन है, उसके बाद एडवर्ब एडजेक्टिव, मैंने हमेशा आपको बताया जितने भी जनरली एलवाई वाले जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, अगर वो एडवर्ब हैं तो आप यहाँ से इसको मैचिंग करेंगे, देखेंगे क्या शन वाला जो वर्ड है वो नाउन हो गया और एलवाई वाला वर्ड ये हो गया, सी का 4, सी का 4, ए का 3, ए का 3, सी का 4, ठीक है। तो ये तो यहीं से ही एलिमिनेशन से ही आपके क्वेश्चंस बन जाने चाहिए थे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ देखेंगे नाउन, ठीक है, जस्ट, ये कई बार मैंने स्टूडेंट्स को क्लास में लिखवाया, टाइप ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो एडवर्ब जस्ट क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, नाउन, नाउन यहाँ पे देखेंगे जस्टिस, जस्टिस क्या है, नाउन है, ए का 3, ए का 3, ए का 3, सी का 4, सी का 4, सो द राइट आंसर इज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, 106 में यहाँ पे चेक करेंगे स्ट्रेटनेस, जनरली ये जो नेस वाले वर्ड होते हैं, मैं नेक्स्ट क्लासेस में आगे जब हम नया बैच में पढ़ेंगे, सो आई टीच देम कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, नेस वाले जितने भी वर्ड होते हैं सारे नाउन होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटन, स्ट्रेटन वर्ब है 106, 106 में लेट मी 86, हाँ यहाँ पे वर्ब है स्ट्रेटन, तो स्ट्रेटन वर्ब हो गई, बी का 3, बी का 3, ए का 4, ए का 4 और बी का 3, है ना, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 में देखेंगे जीरेंड, जीरेंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड जीरेंड, तो ये जीरेंड हो गया, यहाँ से मैच हो गया, नाउन फुलनेस, NESS वाला जो वर्ड है, ए का 2, ए का 2, सी का 3, सी का 3, ये रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, 108 में फिर से देखेंगे क्या पूछा है हमसे, एडवर्ब एडजेक्टिव, है ना, फॉरबिडन ऑब्जेक्ट्स, फॉरबिडन होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इज कॉल्ड वर्ब, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडवर्ब हो गया ये, और नाउन हो गया फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, इसका एक बार क्रॉस चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, 108 का हमारा आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, 109 में नेस वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं, तो ये नाउन हो गया हमारा सेकंड। उसके बाद हार्ड, है ना, ये थोड़ा सा गेम प्ले कर गए यूपीएससी वाले, हार्ड एडजेक्टिव भी होता है और हार्ड एडवर्ब भी होता है, सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 110, फास्टनेस, दिस इज अ नाउन एंड फास्ट इज एडवर्ब एंड एडजेक्टिव दोनों होता है, वो आगे चल के मैं यूजेस सिखाती हूँ क्लास में कि हाउ टू आइडेंटिफाई देम, सो द राइट आंसर इज डी।
Question number 111. These are the questions based on closed test, है ना? These are the questions based on closed test. Closed test में तो हमें पूरा closed test एक बार पढ़ना होता है, तब जाके हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. So I am telling you the answers only. Question number 111 का आंसर है A. 112 का आंसर है B. 113 का आंसर है D. 114 का आंसर है हमारा 14 का आंसर है A. 15th का आंसर है C. 16th का आंसर है हमारा C. 17th, the right answer is 17th. The right answer is A. 18th. The right answer is 4 off. Then 19th. The right answer is even. And the 20th, the right answer is elated. Okay, so this is the complete discussion of the paper CDS 1 2025. What I personally observe in this paper, they have slightly changed the pattern, so you have no need to worry too much about the paper and the pattern. You must only concentrate on the vocabulary. If your vocabulary is good, you have no need to afraid from the paper in the next exam, means to say in September attempt. You must pay attention on two things. First, on the same pattern, you must practice so many questions, and you must pay much attention on your vocabulary. You can read the newspaper, otherwise a good magazine in your daily life, so that it will improve your vocabulary. So have a nice day, and Jai Hind.